ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਫਰੋਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਫਰੋਕ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਕ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ 34 ਇੰਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ 2 ਇੰਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ 36 ਤੇ ਚੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 12 ਇੰਚ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 13 ਇੰਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 23 ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਇੰਚ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਲੀ ਦੀ ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲਾ ਘੇਰ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਘੇਰ ਆ ਉਹ 23 ਇੰਚ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 23 ਇੰਚ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਲਿੱਤੀ ਆ 36 ਇੰਚ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੀਨਜ਼ ਚੋਲੀ ਦਾ 13 ਇੰਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਇੰਚ ਘੇਰ ਦਾ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਆ ਤਿਆਰ ਉਹ 27 ਇੰਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ 27 ਇੰਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਆ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6.25 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। 6.25 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਇੰਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ 9.25 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 9.25 ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਰ ਆ ਕਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਨਾਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ 26 ਇੰਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6.5 ਇੰਚ ਆ ਜੂ ਤੇ 2 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ 8.5 ਇੰਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਆ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 12 ਇੰਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਤੀਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ 6 ਇੰਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਰੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 6.5 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6.5 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕ ਦੀ ਵਿਡਥ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5 ਇੰਚ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 5 ਇੰਚ ਹੋਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਨੈਕ ਆ ਫਰੰਟ ਨੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹ 5 ਇੰਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਕ ਨੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ 4.5 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਇੰਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ। ਇਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਫਰੋਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੱਟ ਫਰੋਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੱਟ ਫਰੋਕ ਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੱਟ ਫਰੋਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪੈਂਦਾ ਘੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰੋਕ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੱਟ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੱਟ ਫਰੋਕ ਲਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੋਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਕ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਘੇਰ ਕੱਟਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੋਲਡ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फ्रेंड्स, देखो ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। इधरली साइड अपने को दोने पल्ले फोल्ड ने ते इधरली साइड अपने को खुली साइड। तो हुण आपां कमर दा जिहड़ा नाप आ वो इत्थों लगाउणा स्टार्ट करांगे। जिहड़ी कमर आ अपने कोल 8.5 दी आपां कटिंग करनी आ इत्थों इत्थे तक। तो इत्थों असीं 8.5 ते निशान लगावांगे इत्थे तक। देखो इत्थे ते इत्थे असीं 8.5 का निशान, इत्थे तक असीं 8.5 का निशान लगा लिया। तो ये इत्थों ते इत्थे तक ते इत्थों ते इत्थे तक इक्वल होना चाहिए। इधर भी साडे कोल 11.5 ते आए निशान ते इधरों भी साडे कोल 11.5 ते आए निशान। तो असीं इत्थों असीं निशान इस तरह सीधा कर लांगे। तो असीं हुण की करना, इस पॉइंट तो इस कोने तो इत्थे तक 11.5 ते निशान लगावांगे। जिमें इत्थों इत्थे तक असीं 11.5 लीता सी, इत्थों इत्थे तक 11.5 लीता सी। इस तरह इत्थों इत्थे तक असीं 11.5 का निशान लगा के इहदे विच गुलाई पा देंगे। इस तरह ये साडे कोल गुलाई पै गई आ। हुण असीं इत्थों इत्थे तक घेरे लई 23 इंच लवांगे। हेठले घेरे लई असीं इत्थों इत्थे तक 23 इंच लेना, इत्थों इत्थे तक 23 इंच ते असीं निशान लगावांगे। इस तरह असीं इत्थों इत्थे तक निशान, इस तरह असीं इत्थों निशान लगा लांगे। इत्थों भी ते असीं हुण इह सारे निशानां नूं मिला दांगे। इस तरह गुलाई दे देंगे इहनूं। इत्थों इत्थे तक कटिंग करांगे। ते इस तरह असीं इत्थों इत्थे तक कटिंग करांगे। सेंटर ते असीं उरे कट लगा लांगे। ते इत्थे साडे कोल 2 जिहड़े पल्ले ने वो खुले ने, एक फोल्ड आ ते उहनूं भी इस तरह कट लगा के खोल लांगे। लो जी, आ साडे कोल फ्रॉक दा जिहड़ा वो घेरा तैयार हो गया। फ्रेंड्स, घेर कड्ढण तो बाद अपने कोल कपड़ा इस तरह बाकी बच गया जिहड़ा, इहदे विच हुण आपां झोली कड्ढांगे। इहनूं इस तरह इदां फोल्ड कर लांगे ते आपां जिहड़ा घेरा लित्ता नीचे वाला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾ के ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ तक। इन्ना ਆਪਾਂ फोल्ड करके ਇਹ कपड़ा कट लांगे। फ्रेंड्स, ਅਸੀਂ इस तरह झोली ਦਾ ਜਿਹੜਾ नाप आ ਉਹਦੇ निशान लगा लिया। जिद्दां इधर अपने कोल 13 इंच लंबाई, आप 13 इंच ले लीए। ते अपने कोल नीचे वाले घेर का जो नाप सी कमर का और इत्थों आपां वो ले लिया। ते हुण आपां इत्थों इहदी कटिंग कर लांगे।
फ्रेंड्स ਜਿਹੜਾ अपना पिछला पल्ला ਉਹਦੀ कटिंग ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगले पल्ले की कटिंग करनी है, इसलिए इस पर निशान लगावांगे। हुण असीं सब तो पहला आर्म होल लवांगे 6.5 इंच, 6.5 ते निशान लगा लांगे ते इत्थों असीं लाइन सीधी ड्रॉ कर लांगे। छाती का नाप लगावांगे। छाती का नाप साढ़े को 27 इंच है तो इसका चौथा भाग असी 6.25 इंच ते इसका निशान लगावांगे। 6.25 इंच इत्थे, 2 इंच असी एक्सट्रा कपड़ा लवांगे। ते हुण असी कमर का नाप लवांगे। कमर साढ़े को 26 इंच है तो चौथा भाग 6.5 ते निशान लगावांगे। दो इंच इत्थों भी असी एक्सट्रा कपड़ा लवांगे ते हुण असी इन्हां निशानां नूं मिला दांगे। हुण असी तीरे का नाप लगावांगे जो साढ़े को 6.5 है। 6.5 ते इत्थे निशान लगावांगे ते इत्थों भी असी 6.5 ते निशान लगा लांगे। इस लाइन में असी इस तरह सीधा कर लांगे। हुण असी अद्धा इंच इत्थों इधर नूं लवांगे ते इनूं इस तरह मिला देंगे। हुण असी अगले मोढे की गुलाई पावांगे इस तरह। गले की चौड़ाई असी 2.5 इंच लवांगे। अगले गले की डूंघाई साढ़े कोल 5 इंच, असी इत्थे 5 इंच ते निशान लगावांगे ते इत्थों असी चौरस बॉक्स बना लांगे। इत्थों इस तरह असी 1 इंच टेढ़ा लवांगे ते इत्थों इस तरह असी गलाई पावांगे। हुण असी अद्धे इंच का निशान इत्थे मोढे ते लगावांगे। ये निशान असी सिर्फ अगले पल्ले ते लगाना क्योंकि ये कटिंग असी सिर्फ अगले पल्ले ते ही करनी है। साढ़े अगले पल्ले दे निशान ने जो कंप्लीट हो गए ने, हुण असीं इन्हां दी कटिंग करांगे। हुण असीं इस तरह पिछला पल्ला सैट करके रख के फिर इस उत्ते अगला पल्ला इस तरह सैट करांगे। पिछले गले की जिहड़ी डूंघाई है वो असी 4 इंच लवांगे। इत्थों असी गुलाई पा लांगे इस तरह। हुण असी पिछले मोढे लई जिहड़ा निशान लगाउणा वो इस तरह अगले मोढे तो अद्धी इंच के फर्क नाल लगावांगे इस तरह। हुण असी पिछले पल्ले की कटिंग करांगे। उस तो पहले एक गल का ध्यान रखियो, जिहड़ी असी काट अद्धे इंच की इत्थों असी अगले पल्ले नूं पाई सी वो पिछले पल्ले नूं नहीं पाउणी हैगी। ते हुण असी पिछले पल्ले की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स जो भी असी अमरेला कट फ्रॉक की कटिंग करनी है तो एक गल का ध्यान रखियो, असी इत्थों इत्थे तक
1 इंच का निशान लगा के इस तरह हल्की जी गुलाई पाउणी आ ते असी इत्थों हुण इसनूं कट कर लांगे। ये काट सिर्फ अमरेला कट फ्रॉकां विच ही पैंदी है। इत्थों हुण असी दोने पल्लियां ते छोटा जिहा कट का निशान लगा लांगे। फ्रेंड्स हुण असी चोली की स्टिचिंग करनी है, इसलिए असी कपड़े नूं इस तरह रख लांगे। सीधी साइड अपनी विचकार आऊगी दोहें पल्लियां दी ते इधर भी पुट्ठी साइड ते उपर भी पुट्ठी साइड। हुण असी सब तो पहला मोढियां ते सिलाई लगावांगे। गला तैयार करांगे। इहदे लई असी 1.25 इंच चौड़ी रेप पट्टी कट कर ली है ते इनू असी अपने दोहे पल्लियां नूं पुट्ठा करके लगावांगे। चाहो तो तुसी सीधी साइड तो भी लगा सकते हो, पर असी ये पाइपिंग वांगू लगाउणी आ, इसलिए असी पुट्ठी साइड तो लगावांगे। रेप पट्टी की जिहड़ी लंबाई है वो साडे कोल घट आ, इसलिए असी इस तरह दोने पट्टियां नूं जोड़ांगे। इस तरह देखो इधर भी साडा सीधा पासा पट्टी दा ते इधर भी सीधा पासा, सीधे पासे नाल सीधा पासा मिला के इस तरह असी इस तरह करके इत्थे सिलाई लगावांगे। देखो असी रेप पट्टियां नूं इस तरह जोड़ लिया ते हुण असी गले ते लगावांगे। असी इधरली साइड तो पहला इसनूं इस तरह कट कर लांगे ते हुण आपां दोहे पल्लियां दी पुट्ठी साइड लगा लांगे इस तरह। ते हुण असी मोढे ते लगाउणा स्टार्ट करांगे। पहला इनू पट्टी नूं पहला इस तरह तुसी फोल्ड कर लियो। इस तरह सीधी साइड इधर आ, पुट्ठी साइड नूं इदां तुसी फोल्ड करके फिर इनू इस तरह फोल्ड कर लियो। फोल्ड करके हुण असी इत्थों पहला मोढे तो लगाउणा स्टार्ट करांगे। इत्थों इस तरह तुहानूं लगा के दिखाउने असी। हुण असी इत्थे नाल नाल पैर पैर दी सिलाई लगा दांगे। देखो जिहड़ी असी पहला पट्टी जिथों स्टार्ट कीती सी, इत्थों इदां स्टार्ट कीती सी, जदों इनू पट्टी नूं लिया के इत्थे तक मिलाया तो थोड़ी असी अगे तक लगाती ते जदों इनू इदां फोल्ड करांगे तां चीज़ आ जिहड़ी इदां आ जूगी अपने कोल इस तरह। ये हमेशा जिहड़ी पट्टी लगाउणी इत्थों स्टार्ट करनी है, मोढे तो स्टार्ट करनी है, क्योंकि आ चीज़ है जिहड़ी मोढे ते आ जूगी फिर अपनी। हुण असी इत्थे तक सिलाई सारी मार ली है। हुण असी इत्थों जदों इनू जोड़ना तो की करांगे, इस तो इत्थे तक जिवें इत्थे तक अपनी पहली जिहड़ी आपां पट्टी स्टार्ट कीती ती, इत्थों स्टार्ट कीती ती, जिहड़ी ये पट्टी लगाउणी है आपां इत्थे तक वाधवीं लगा दांगे, अद्धा इंच वधा के लगा दांगे। असी ऐं करदे हां, अद्धा इंच इस तो वधा के पट्टी नूं कट कर लैंदे हां। देखो असी जिहड़ी आ पट्टी पहलां स्टार्ट कीती ती जित्थों लगाउणी, उस तो अद्धा इंच वध इस तरह पट्टी कट के इस तरह रख लांगे। इस तरह इनू सैट करके लगावांगे। इत्थे सिलाई लगा लांगे। फ्रेंड्स असी पट्टी नूं इस तरह सीधी साइड मोड़ के इत्थे सिलाई लगा दांगे। असी तुहानूं सिलाई लगा के दिखाउने आ। इस तरह असी सारी पट्टी नूं मोड़ लांगे सीधी साइड नूं ते इत्ते सिलाई लगा दांगे।
देखो फ्रेंड्स, इस तरह साडी पट्टी लग जूगी। इसे तरह असी दोने मोढियां ते लगावांगे। मोढियां ते भी असी बैक साइड तो पट्टी इस तरह रख के स्टार्ट करांगे लगाउणी। इस तरह आपां फोल्ड कर लांगे ते इत्थों बैक साइड तो रख लांगे। हुण असी चोली दे नाल हेठां वाले घेर नूं अटैच करना। असी इस तरह दोने पल्लिਆਂ ਨੂੰ खोल लांगे चोली दे ते आ साडी सीधी साइड आ ते इहदे उत्ते असी इस तरह घेर लवांगे, इस तरह रखांगे। आ साडी चोली दी सीधी साइड आ ते जिहड़ा आपां इहदे उत्ते सीधी साइड ते घेर रखना ओहदी साइड आ इधरों सीधी होगी, इस साइड सीधी होगी ते आ साइड है जिहड़ी पुट्ठी होगी। ते हुण असी की करना, जो असी सेंटर ते चोली दे भी सेंटर ते निशान लगा लिया, जिहड़ा घेर वाला पल्ला ओते भी सेंटर ते निशान लगा लिया। हुण असी इत्थों सेंटर तो सेंटर नूं मिला के देखांगे इस तरह। चाहे तुसी सिलाई भी सेंटर तो स्टार्ट कर सकते हो। पहला इधरों इधर नूं लगाती, फिर इधरों इधर नूं लगाती, पर असी इस तरह मिला के देख लांगे भी साडे कोले पूरा जो भी वध घट कपड़ा वो साइडां ते कढ़ दांगे। साडे कोले कपड़ा पूरा पूरा इस तरह वध घट नहीं हैगा ते असी इत्थों ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तुसी जे लगदा कपड़ा वध घट आ तो हमेशा तुसी इहदे सेंटर तो सिलाई लगानी स्टार्ट करनी आ। पहला इधरों इधर नूं सिलाई लगा दिओ, फिर इधरों इधर नूं। ते हुण असी तुहानूं सिलाई लगा के दिखाउने आ। असी इत्थों ही स्टार्ट कर देंगे क्योंकि साडे कोल पल्ला जिहड़ा वो वध घट नहीं हैगा। असी दोहे चोलियां नूं घेरे नाल जोड़ लिया इस तरह, देखो। ते असी इस तरह इत्ते सिलाई लगा ली है दबमी उपरली साइड। देखो हुण असी इधरली साइड तुहानूं लगा के दिखाउने आ। जिद्दां अपने कोल बैक साइड आ, बैक साइड आ जिद्दां अपने कोल, ते आ जिहड़ी पिछों अपनी सिउण आ इनू आपां इदां फोल्ड, इदां इधर नूं चोली वल नूं फोल्ड करांगे इदां, ते इदां इनू रख के देखो इहदे उत्ते इहदे नाल नाल जिद्दां आपां सलवार नूं जदों बेल्ट नाल जोड़ लैंदे उस तो बाद आपां इदां बला नूं इधरली साइड नूं मोड़ के सिउण नूं इहदे नाल नाल इदां आपां सिलाई लगाउने आ, उदां ही आपां सिलाई लगावांगे। मैं तुहानूं लगा के दिखाउंदी आ। हेठों असी पट्टी जिहड़ी अपनी बदमा कपड़ा उहनूं चोली वल नूं मोड़ दांगे। देखो असी इधरों इस तरह चोली वाली साइड इनू इदां फोल्ड करके इत्थे सिलाई लगा ली है इहदे नाल नाल, देखो इत्थे। असी फ्रॉक दे बैक साइड ते बेल्ट लगावांगे। इहदे नाल की हुंदा ना भी अपनी कमर तो जिहड़ी फिटिंग आ वो वधिया बन जांदी आ। ते असी इहदे लई पट्टी कट कर ली है। पट्टी दी जिहड़ी चौड़ाई है वो 2.5 इंच ते लंबाई अपने कोल 1.5 इंच। ते इहनूं असी हुण सिलाई करांगे इस तरह फोल्ड करके।
इधरली साइड इहदी एक साइड असी बंद कर देंगे, इत्थों सिलाई रख के इदां लगावांगे ते दूजी साइड इस तरह सीधी रखांगे। असीं तुहानूं सिलाई लगा के दिखाउने हां। इस तरह असी दूजी पट्टी भी तैयार कर लांगे। इस तरह असी फोल्ड करके ते हुण असी इन्हां नूं सीधा कर लांगे। इत्थों जिधरली साइड बंद सी उधरों सीधा इस तरह सैट कर लांगे। इस तरह असी दूजी पट्टी सीधी कर लांगे। इनू भी इदां ही सैट कर लांगे। लो साडियां दोनों पट्टियां बन के तैयार हो चुकियां ने। असी दोनों पासे फिटिंग के निशान लगा लिए हैं, इधर भी तो इधर भी। हुण असी फिटिंग की सिलाई लगावांगे। इत्थों असी फिटिंग की सिलाई नूं रख के लगावांगे ते बराबर इदां करके सैट कर लियो इनूं। ते हुण जिहड़ी ये बेल्ट आ इनू आपां की करना, जिथे आपां घेर नूं अटैच कीता सी चोली दे नाल उत्थों इनू अंदरली साइड रखांगे। जिधरों अपना खुला पासा आ वाला खुला पासा इधरों इधर नूं इदां रखांगे आपां। इत्थे सिलाई दे विच आउणा चाहिदा अपने सिउण वाली जिहड़ी साइड अपनी इहदी वो इधर सिउ जिथे अपनी सिलाई आ उत्थे ही आउणी चाहिदी, इत्थे तक। ते हुण इनू चंगी तरह अपना सिलाई च ना आ जावे इनू विच सैट कर लैने। इत्थों रख के चाहे पहला इत्थों रख के पक्का कर लो, जे तुहानूं लगदा भी तुहानूं औखा लगदा पहला इत्थे रख के तुसीं सिलाई भी लगा सकदे हो, उस तो बाद इनू अटैच कर लिओ इहदे नाल। इस तरह कर लांगे ते हुण फिटिंग की सिलाई लगावांगे। इत्थों असीं सिलाई थोड़ी टेढ़ी लगावांगे क्योंकि इत्थों साडा काफ़ी फर्क सी। ते इस तरह हौली हौली असीं सिलाई नूं सीधा कर लांगे। कपड़े की जो वाध घाट आ उन्होंने आप कट कर लांगे इस तरह। इस तरह असी इधरली साइड भी सिलाई लगा ला। असी फिटिंग की सिलाई लगा ली है इस तरह दोहे पल्ले नूं पुट्ठा करके। हुण असी नीचे घेर नूं फोल्ड करना। अमरेला कट फ्रॉक दे विच की हुंदा हेठों जिहड़ा घेर आ वो फोल्ड करना औखा हुंदा। इनू मैं फोल्ड करन दा तुहानूं तरीका दसदी हां। तुसीं पहलां की करना, इस तरह अद्धा इंच अंदर नूं इदां फोल्ड करके पहलां इत्ते इसे तरह सिलाई मारनी है। इनू इस तरह नहीं फोल्ड करना हैगा। पहलां असीं इस तरह इत्ते एक सिलाई लगा लांगे। मैं तुहानूं सिलाई लगा के दिखाउंदी हां। देखो फ्रेंड्स असी इस तरह सिलाई लगा ली है। हुण असी की करना, इत्थों इस तरह फोल्ड करके हुण इत्थे एक सिलाई लगावांगे।
ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੀ ਫਰੋਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੋਕ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।